Hello everyone, welcome to CGB Mentors. I hope you are doing great in your life and your studies are going very good. So yes, this video is for NABARD aspirants or any aspirant who wants to give NABARD grade A this year, है ना? That is 2026. Right? So we have made various kind of strategy videos. For example, we have discussed that how to write a descriptive answer. Then we have discussed that what to cover first in the ARD, है ना? In the ARD section, right? What to cover first in the ARD section, and basically abhi at this moment what shall be done specifically if you're focusing on NABARD grading. Then we have also done what shall be your next 60 days strategies while preparing for NABARD grading. Now मैम हमने आपने बता तो दिया कि देखो ARD ऐसे ऐसे करना है, these are the important topics which I have chalked out for you. It is available on YouTube, आप जाके देख सकते हैं. Then we have also done कि अच्छा इस तरीके से priority basis पे आपको ARD setting करना है. But now the question comes that how do we know कि previous year में क्या questions आए हुए हैं और किस तरीके के questions आते हैं. Then only you will be able to analyze and strategize कि पढ़ाई कैसे करनी है. So today I have brought a kind of a video in which we are going to discuss ARE 3 years PYQs, and that is entirely for phase 1. Right? You must be aware that there are 40 questions of ARD, right? There are 40 questions of ARD in phase 1. 40 is of ESI and 20 questions are of what? General awareness. So, in the similar manner, we will be discussing for the last 3 years ESI PYQs, but that will be in a separate video. Why are we discussing it? तो पढ़ाई कैसे करोगे? PYQs नहीं देखोगे तो आपको समझेगा कि कौन से टॉपिक पे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से कौन सी चीज को क्रैम करना है, right? All of that we'll be discussing today, and then at the end of the video you will be able to analyze कि सबसे ज्यादा important topics कौन से हैं, है ना? चलो, let's start our video. So this is for the 2025 ARD questions. 2024 और 2025 में एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ करता था, but in 2023 there are two shifts. तो हमें बेसिकली 4 पेपर डिस्कस करने हैं. 2023 for morning and evening, 2024 and then 2025. So we will go backwards, right? मोटा मोटा पढ़ेंगे कि चलो यहाँ से कौन से चैप्टर से, कौन से सब टॉपिक से, कौन से थीम से क्वेश्चन बारी बारी रिपीट हो रहे हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू एनालाइज ऑल द थिंग्स. विच स्पाइस बिलोंग्स टू द जिंजर फैमिली एंड इज आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ स्पाइसेस. सो ये एक हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन आता है दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट द साइंटिफिक नेम, बी इट इज अ फ्रूट, बी इट इज अ वेजिटेबल, बी इट कोई भी प्लांट या कोई भी फॉरेक्स ट्री या कुछ भी उठा के दे देंगे. सो दिस इज अ सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट टॉक्स अबाउट किसी भी फैमिली का ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है. एंड सर्टेन क्वेश्चंस आर लिटिल टफ इन द एग्जामिनेशन बिकॉज लेट्स से आपने 30-40 भी लर्न कर लिए तो जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पर आए, बट एक द पॉइंट इज कि ऐसा क्वेश्चन आता है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट. सो ऑब्वियसली देयर आर 6 काइंड्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिसमें आपका एनपीके रहता है. सो दिस इज अ चैप्टर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जो ऑब्वियसली दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. देन Usara, Ray, Kalar are names of which soils? Soil. It is such an important question. Be it soils, be it soil erosion, be it soil conservation methods, be it soil this properties, physical and chemical properties. तो basically ये NCERT में भी ये definitely mentioned है that these are the names of local names of different soils, that is known as saline soils, right? अब देखो 2020 5 में और 4 में जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था, इट वाज वन लाइनर. इट वाज वेरी इजी. आई रिमेंबर दैट इन द ईयर 2023 द पेपर वाज टफ. दैट मींस लेट्स से ए बी सी डी, देयर वर वेरियस ऑप्शंस. इन फैक्ट द ऑप्शंस वर डिफिकल्ट, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे. बट 23 और 24 नहीं, 24 और 25 में इट वाज वन लाइनर. इतना वन लाइनर था कि अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आपका एग्जाम 15-20 मिनट पहले ही हो जाएगा, राइट? बिकॉज इट इज वेरी इजी टू रीड, है ना? Which type of soil? Again एक soil का question है, right? Types of soils होते हैं आपके black soils, alkaline soils, saline soils, right? Phoric soils. तो उसमें एक categorization इन्होंने बना दी. Deccan traps, obviously volcanoes and volcano eruptions and lava से बना हुआ है, that is black soils. आपने कभी geography पढ़ी हो. एक क्वेश्चन, नो मैटर व्हाट, एक क्वेश्चन हमेशा पंचायती राज से आएगा ही आएगा. इन 2025 देयर वर 2 क्वेश्चंस, सेम था. ईएसआई में भी सेम था, एआरडी में भी सेम था. दैट वाज कि भाई व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, दैट इज 5 इयर्स. डेफिनेटली दे कैन आस्क अबाउट द कमिटी ऑफ द पीआरआईज, ठीक है, जिसको हमारी एक ट्रिक से हम लर्न करते हैं, दैट इज बैग एल, किसी को पता होगा, अशोक जीवी राव एंड लिंगवी कमेटी, है ना, बीवी की राव, ऐसे करके एक कमेटी, या तो कमेटी पूछ लेंगे. देन यू कैन कंसिडर दिस एज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ पीआईबी ऑल्सो. यू कैन कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑल्सो. एंड ऑलवेज रिमेंबर, you do not have to do separate current affairs for agriculture. You do not have to do if you have done PIB.
right? If you have done PIB current affairs, that has so many portions of agriculture itself, you are sorted, right? You are sorted. Then animal husbandry बहुत ज़्यादा important है. They'll ask like ये देखो, which is not a bovine family, cattle, buffalo, mutton, yak, goat. Answer was basically goat. ठीक है. Then आत्मनिर्भरता impulses schemes का question है. In fact, obviously in the current affairs it came 2031 तक था, है ना, 11,440 CR. देन फॉरेक्स एक्ट, एक क्वेश्चन हमेशा फॉरेक्स से आएगा, चाहे कुछ भी हो, एक से दो क्वेश्चन, समटाइम्स इट कैन बी 3 आल्सो. फॉरेक्स लॉज, फॉरेक्स पॉलिसीज, कौन सा कंजर्वेशन एक्ट है हमारा. देन फॉरेक्स राइट्स एक्ट जैसे 2006 का है. अच्छा यही है क्या? हाँ यही है. फॉरेक्स राइट्स एक्ट या फॉरेक्स एक्ट, दिस इज पास्ड इन 2006. उसके बाद देन देयर इज अ फॉरेक्स लॉज. अगेन दे आस्क्ड अबाउट द फॉरेक्स पॉलिसी ऑफ 1988. केसीसी कुछ भी पूछ लेते हैं, इतना इजी पूछ लिया कि कब लॉन्च हुआ, है ना. एंड देन हम उसमें कुछ भी पूछ सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ लोन्स है, कितना इंटरेस्ट सबवेंशन है, प्रॉम्प्ट पेमेंट पे कितना आपको परसेंटेज मिलता है. देन देखो ये पूछा हुआ उन्होंने. केसीसी पे अगेन लिमिट आपकी कितनी है, 3 लाख. सो इट मींस केसीसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. We are talking about the type of questions, we are talking about the themes that have been asked repeatedly. ठीक है. अब देखो फिर से एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन आया हुआ है कि वैल्यूइंग क्या होता है. बेसिकली इट इज एक्टिविटी ऑफ अ बफलो जो इट गोज इन अ वाटर एंड टेक बाथ, राइट. अपने आप को नॉट इन अ वाटर ऑल्सो बट काइंड ऑफ कीचड़, तो दैट इज नॉन एज वैल्यूइंग. सो दिस आस्क्ड कि भाई किस एनिमल से रिलेटेड है, इट इज बफलो. देन अगेन पोल्ट्री, animal husbandry in poultry, 4-5 questions easily आएंगे. Again they have asked about egg production, right? Laying birds, egg production commences at about 22 weeks of age, rises sharply. Then so he basically tells that it rises sharply at what weeks of age, and then it gradually decreases. So what is basically the age of that, right? Age of that what weeks of age the eggs has basically increase होते हैं in a poultry. So they have asked about that age, right? अब आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं. द एक्टिविटी ऑफ द एनिमल्स, देन दे आर टॉकिंग अबाउट द एजेस ऑफ द पोल्ट्री, कि सबसे ज्यादा एग्स कौन से उसमें होते हैं. देन टाइप्स ऑफ पोल्ट्री भी पूछ लेते हैं कि लेयरिंग जो होती है वो कौन सी वीक में, जैसे 21 वीक्स ऑफ एज में जो है एक चिक एग्स देना स्टार्ट करती है, तो ये आंसर क्या होगा, 21 वीक्स. तो दैट इज टाइप ऑफ द क्वेश्चन दे आस्क. देन स्टेट्स का क्वेश्चन आता है कि लेट्स से हमारे जो एस्टिमेट्स होते हैं उसमें से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछ लेंगे, या फिर एस्टिमेट्स का पूछ लेंगे कितना टन्स इंक्रीज हुआ है फूड ग्रेन्स, कितना टन्स डिक्रीज हुआ है, ऑल ऑफ दैट, राइट. या फिर दे कैन आस्क यू अबाउट द एमएसपी, है ना, एमएसपी ऑफ सर्टेन प्राइसेस, दे आस्क यू अबाउट एमएसपी आल्सो. नाउ एक क्वेश्चन हमेशा मैंने अभी नोटिस किया है कि दे हैव आस्क्ड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स से कि ये वाली ऑर्गेनाइजेशन कहाँ प्लेस है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इज स्पेसिफिकली इन गुरुग्राम, दे कैन आस्क दिस आल्सो, राइट. कॉफी बोर्ड कहाँ लोकेटेड है, या ये काम किसका है, अपेरा का है, लेट्स से नेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन. सो ऑल ऑफ दैट दे वन क्वेश्चन इज सर्टेन इन ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, है ना, कहाँ लोकेटेड है, क्या काम करता है. देन स्कीम से क्वेश्चन है. अब देखो इन्होंने कुछ भी डिटेल नहीं पूछा, दे हैव जस्ट आस्क्ड कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड कौन सी स्कीम है. 23 में यही क्वेश्चन आना उठ के आता तो एक दो स्टेटमेंट्स दे देते कि कितनी सब्सिडी, कितने लाख की कितनी मिलती है, बट द क्वेश्चन वाज जस्ट फूड प्रोसेसिंग. कोई भी आंसर कर पा रहा था. पीएम किसान संपदा योजना, इफ यू प्रिपेयर्ड वेल इट वाज इजी. देन हॉर्टिकल्चर, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर से मान के चलो 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए. एंड इट इज अ ह्यूज चैप्टर ऑल्सो, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत दिन लग जाते हैं इसको करने में, because it not only includes the types of fruits, the vegetables, it also includes the type of activities like pruning क्या होता है, pinching क्या होता है, then the types of plantations, है ना, square system, rectangle system, all of that. So this ये पहले भी पूछा गया, ये repeatedly पूछा जाता है, ये वाला system है ना, Quincunx system, Quincunx, ठीक है. Now this is again a question of agroclimatic zone. ठीक, Vindhya Plateau is in it with John. ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी इसको आप बोल सकते हो. देन एक क्वेश्चन हमेशा हमेशा देयर विल बी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज. तो उन्होंने पूछ लिया सीडीएम, अगर क्लाइमेट चेंज पढ़ा है तो इट इज रिलेटेड टू क्योटो प्रोटोकॉल. देन अबाउट द करंट अफेयर्स, production of milk, it was on the current affairs, right? Simple. Then skill impact bond, this is a scheme, this is a scheme question which we have under the Ministry of Skills, they have asked about this. Then not a benefit of, then एक question आप you can expect from self help groups, one question you can expect from cooperatives. easy सा question है. और अगर आपको नहीं भी आप पढ़ के गए हो तो आप इसको डिड्यूस कर सकते थे कि देखो you know that cooperatives means people coming together. So minimizing the bargaining power of farmers, ऐसे कैसे हो सकता है? It is to increase the bargaining power of the farmers. So these are basically the understanding and conceptual based questions. Then एक question preservation पे पूछ रहे हैं कि इस चीज को preserve करना है तो कौन सा डालना है, सोडियम बेंजोएट डालना है या क्या डालना है. So this was a tough question from me क्योंकि मुझे ये नहीं आता था. But I realized it was in our notes. Last में जो notes मिलते हैं हमें 20-30 pages के, उसमें ये word it was mentioned and I missed it, and that's okay because I cleared it.
एनीवेज नाउ हमेशा इरोजन से, सॉइल इरोजन से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, एंड बहुत इजी होता है कि गलीज बना रहे हैं, रिल्स बना रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। सी वी आर हियर नॉट जस्ट टू सी द टॉपिक एंड थिंग्स, वी आर हियर जस्ट टू सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, लाइक अरेंज द स्टेजेस ऑफ सॉइल इरोजन। आपको भी पता है पहले थप थप स्प्लैश और फिर शीट यानी कि नॉर्मल आता है, ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। इट इज नॉट रील, इट्स रिल्स। रिल्स यानी कि थोड़ी गलियां सी बन जाती है, गलीज मीन्स बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, राइट। देन लाइक वी सी इन द कौन से रिवाइंस है एमपी में, वो जहाँ डाकू वगैरह होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। सो यस, देन दिस वाज आल्सो इजी। बैकवर्ड लिंकेजेस में ऑब्वियसली मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, ये क्या होता है, फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं। सप्लाई ऑफ इनपुट इज अ बैकवर्ड लिंकेजेस। इससे इससे आपको कोई नॉर्मल कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, इट इज अ कॉमन सेंस थिंग। देन विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, देन मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर से क्वेश्चन आया हुआ है एक। देन टीलेज एंड फार्म इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन आ जाता है, राइट। एक क्वेश्चन यू कैन सी ओवर देयर, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज, विच इज नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फंक्शन ऑफ सीड कम, है ना, seed cum fertilizer drill, it means it is drilling also, it is putting the seeds also in the ground, so they are asking which one is not। so उन्होंने बताया कि चलो फर्स्ट ऑफ ऑल वो डीप पे सोइल को मतलब इट विल कट इट यूनिफॉर्मली, अप्लाई होगा, यूनिफॉर्म डेप्थ होगा, राइट। बट इट डजंट डू दैट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी टिलेज। जो ये ब्रेकिंग द क्लॉड्स है, कटिंग वीड्स है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी टिलेज। जो आपका सीड ड्रिलिंग होता है, इट इज अ सेकेंडरी। सो फिर यू हैव टू बेसिकली यू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी, एंड हर एक इंप्लीमेंट का एक लाइन में क्या क्या काम होता है, राइट, हर लाइन में। बिकॉज हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम ये दे दे, देन यू हैव टू टेल कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। चलिए, अब इरिगेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने पूछा नॉट वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, हर साल क्वेश्चन पूछेंगे, सालों से साल पूछते आ रहे हैं कि रेन ड्रॉप जैसा इरिगेशन किसको बोलते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन है। तो मान लो अब आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे हो, सिंपल सी बात है, कंट्रोल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, द मॉइस्चर स्ट्रेस इज मोर, भाई, and yield gets reduced. Why would you want yield get reduced? You are trying to increase the yield, you are trying to basically increase the concentration of water at its focus part, so this becomes eliminated. So obviously it is good percolation, water use efficiency is increasing, and when you're putting the drip, the salt concentration is also because less, है ना। weed control is also very precise क्योंकि हर जगह पानी नहीं जा रहा है, तो ड्रिप इरिगेशन पढ़ा होगा तो आप कर पाओगे। क्रॉपिंग सिस्टम्स, यस, सो क्रॉपिंग सिस्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज मिक्स क्रॉपिंग, व्हाट इज मिक्स फार्मिंग, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होता है, रिले क्रॉपिंग क्या होता है, तो हर एक का आपको ये इसमें पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज कंपटीशन बिटवीन ऑल क्रॉप्स, व्हिच वाज इनकरेक्ट। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर मिक्स क्रॉपिंग, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, देन ओनली आप बहुत सारी क्रॉप्स एक साथ उगा सकते हो। यानी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले इन्होंने। सोइंग टाइम इज टाइम, हाँ जी, एटलीस्ट वन क्रॉप अंडर फेवरेट कंडीशंस, ऑब्जेक्टिव है। पेन क्रॉप एंड अदर क्रॉप्स इज डिफरेंट ही होगा, एंड ऑल क्रॉप्स आर केयर्ड इक्वली। सो द पॉइंट इज दैट कंसेप्चुअल क्वेश्चन इज आल्सो बीइंग आस्क्ड। ऐसा नहीं है कि आपने रट्टा मारिया एंड देन यू आर गुड टू गो, नो। देन हर साल पीएम फसल बीमा योजना से क्वेश्चन आया है। मैं 3 साल के लिए क्या आई हूँ, तीनों साल पीएम फसल बीमा योजना से क्वेश्चन आया है, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे इन्होंने पूछा था कि नॉर्मल यील्ड से कितना परसेंट मिलेगा अगर इन केस ऑफ देयर इज अ डिजास्टर। सो दे कैन आस्क यू, लेट्स से द फॉर्मूला, दे कैन आस्क यू राबी खरीफ क्रॉप्स में कितना परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस है, ठीक है। दे कैन आस्क यू डिफरेंट डिफरेंट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। देन लाइफ स्टॉक मिशन, सिंपल है। लाइफ स्टॉक मिशन में उन्होंने ये बोला था, विच ऑफ द पार्ट सबमिशंस, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द स्कीम्स, सबमिशंस थे उसके। जैसे कि देखो, लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री, फीड एंड फॉडर, एंड लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, सारे इसके पार्ट्स थे, तो आंसर वुड बी ऑल द अबव। देन द प्राइमरी स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट और टी स्ट्रॉन्ग, दिस वाज अ लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स कि उसको क्या बोलते हैं, हार्टवुड, राइट। देन हर साल एक क्वेश्चन एग्री एक्सटेंशन जाएगा। जैसे अभी केवी के 731 है, इट्स पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स आल्सो, पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आल्सो। सिंपल से आएगा कि ये स्कीम जो है क्या करती है, आत्मा, ठीक है। इट इज एन एजेंसी बेसिकली, है ना, मैनेजमेंट एजेंसी, व्हिच बेसिकली टॉक्स अबाउट फार्मर फ्रेंडली एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। देन विच ऑफ द फॉलोइंग में सडनली, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपके, इन्होंने बोला कि पोल्ट्री फार्म्स की रेट्स कब इंक्रीज होंगे, सिंपल सी बात है, अगर खाने की रेट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो पोल्ट्री फार्म की मेंटेनेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। एनीवन कुड आंसर इट। एलिनो इफेक्ट, ये थोड़ा ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि क्या होता है। एक क्वेश्चन हमेशा सीट से आता है, चाहे वो कलर पूछे, राइट, चाहे वो ये पूछे, जैसे इस बार सीट रिप्लेसमेंट पूछ लिया। अभी आप देखना नेक्स्ट टाइम दे विल आस्क यू द सर्टिफिकेशंस, 3-4 ही क्वेश्चन बनते हैं। प्रोसेस ऑफ सीड्स, सर्टिफिकेशंस, दैट इज क्या वो न्यूक्लियर सीड्स है, ब्रीडर सीड्स है, सर्टिफाइड सीड्स है, उसके कलर्स क्या है, बस अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझेगा। तो द क्वेश्चन वाज द टोटल कल्टिवेटेड एरिया विद सर्टिफाइड सीड्स व्हेन कंपेयर्ड टू फार्म सीड्स
safe seeds. So it is known as seeds replacement rate. That means आप certified seeds use कर रहे हो rather than the farm seeds, and the more you are replacing the farm seeds with the certified seeds, this is known as seeds replacement rate. ठीक है, चलिए, what is it? Okay, तो yes, ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आपने 6th क्लास के एनसीईआरटी में ये कीवर्ड दिया हुआ है, पता है आपको कि व्हेन वन प्लेस वन देयर इज अ movement of this people from one place to another, right? Summer and winters में it is known as transhumance. Then which of the following is an objective of smaller crops? मैंने आपको बताया crops and उसके types and उसके cropping patterns. For example, trap crops क्या होता है, smaller crops क्या होता है, supplementary crops क्या होते हैं, complementary crops क्या होते हैं, and cropping patterns आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर से यहाँ पे crops का question आया हुआ है. Then this is part of soil and irrigation, in which they ask about the electrical conductivity, right, and the concentration. So this was difficult question actually, लेकिन अगर किया हुआ है तो आप ये कर सकते हो. So this was for the 2025. This was for the 2025. अब आप जब 2024 करोगे, you will be able to realize कि जो same pattern of the questions है ना, सेम टॉपिक से जो क्वेश्चन है, इट इज बीइंग बेसिकली रिपीटेड. सो अगर मैं 2025 को चॉक डाउन करती हूँ, राइट, अगर मैं 2025 को चॉक डाउन करती हूँ, तो मुझे ये समझ में आएगा दैट बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर रिपीटेडली, है ना, क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स अभी बताया, स्मॉल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर, राइट, लाइक जैसे क्विनेक्स सिस्टम जो हमारा था, स्क्वायर सिस्टम है या प्रूनिंग है या क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, सॉइल इरोजन on soil and properties. I cannot stress the importance of these chapters so much कि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये स्लाइड दिख रही है कि नहीं? वेट अ मिनट, ये नहीं दिख रही है. Then soil erosion, soil and its properties, forex, agriculture extension से एक क्वेश्चन आ जाता है, farm engineering that is tillage basically, स्कीम से क्वेश्चन आते हैं 5-6. ठीक है, 5-6 का मेरे कहने का मतलब ये है कि व्हेन आई से देयर वर 40-50 क्वेश्चंस ऑफ 40 to 45 क्वेश्चंस ऑफ स्कीम्स, अगर 6-7 यहाँ आ रहे हैं तो ईएसआई में भी आपके 25 to 30 क्वेश्चन स्कीम्स के आते हैं. देन करंट अफेयर्स एंड पीआईबी, सीड्स, इरिगेशन एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस कैन बी देयर. ठीक है, जस्ट अ मिनट. चलिए, नाउ लेट्स डू फॉर द 2024. लेट्स डू फॉर 2024. What is the, देखो मैंने बताया कि हर बार they will ask you the scientific name and it's very difficult to learn this scientific names. अगर आपको याद है तो याद है, पता है तो पता है. ठीक है, जैसे बाले का उन्होंने पूछ लिया, what is the scientific name of बाले? So it was what? Hordeum vulgare. So basically it's very difficult to learn also. Then the causative agent of Kaypox disease, the plants, basically plants उसके disease, animals and उसके disease भी they ask you. It's a part of animal husbandry. It's a part of what? Animal husbandry, in which disease of animals you are basically study. Then अब देखो इन्होंने बोल दिया कि किसको किससे ये किस वायरस से ये होता है. Then मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपकी पीडीएफ आपको दिखाई नहीं देगी और मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर दी है और पूरा दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वन 185 shall be good. Okay. चलिए, so which of one of the following is considered as a man-made ecosystem? Easy है ना? Then in the context of agriculture practices, which of the following is best describes the key objective of using mulching? So mulching basically is a technique of soil conservation, right? Soil erosion and soil conservation is a part of soil erosion only. So basically they are asking that what is the objective of mulching? To help retain moisture in the soil for better crop growth, है ना? तो मैंने क्या बताया था, soil important है, right? Then अब देखो easy आते हैं कि to deliberate reduce soil fertility, common sense है. soil fertility के लिए हम क्यों करेंगे कोई भी conservation method? To attract insects and pests to the crop area. क्या बात कर रहे हो, है ना? Which of the following is the highest milk producing breed of buffalo in India? So they usually talk about breeds. They usually talk about breeds की highest breed buffalo कौन सी होती है, right? These are the types of breeds. Breeds का एक question 100% आएगा ही आएगा, right? Then in the seed production chain, what is the direct progeny of breeder? तो मैंने अभी आपको बताया कि they too ask about the seeds कि nucleus seeds है, breeder seeds है, foundation seeds है. So यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया कि भाई इसके बाद कौन सा seed बनता है. Basically progeny का मतलब होता है कि उससे पहले breeder seeds के बाद कौन सा seeds बनता है. It is foundation seeds. You will be able to relate only when you have done. If you have not done, you will not be able to relate it. But अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, don't think that these are difficult questions. These are really easy questions if you have completed the syllabus, right? Then, which type of soil covers more than 40% of India's
टोटल जोग्राफिकल, ये भी बहुत इजी है। सबसे पहली चीज ये पढ़ते हैं कि हमारा सबसे मैक्सिमम सोइल इज ऑफ एलुवियल सोइल, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगेन सोइल का क्वेश्चन यू कैन सी। देन अगेन कैटल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिस galactopoiesis refers to what? So it is basically related to milk production. Irrigation, again I told you ना that they always about the methods of irrigation. So surge irrigation is a type of what, right? यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ था, that is known as furrow irrigation. ड्रिप का पूछ लेंगे, स्प्रिंकलर का पूछ लेंगे। ओके, देन आई टोल्ड यू दे आस्क अबाउट फसल बीमा योजना, तो देखो यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया कि कितना होगा फॉर खरीफ क्रॉप्स, इट इज 2%, राइट? 2% है, हाँ, for the rabi it is 1.5, for horticulture it is 3. Now again there were options, they were talking about जो भी latest release estimates होते हैं, they ask you about that and they ask about that production of horticulture crops in a decreasing order, so basically you had to arrange them. देन अगेन एस्टिमेट्स पर क्वेश्चन आया, सो ये हमेशा अगर आपने पीआईबी कर लिया, करंट अफेयर्स कर लिया, यू विल बी एबल टू रियलाइज कि आपने ये चीजें आपके ऑलरेडी कवर हो चुकी है, राइट? दैट एज पर दिस एस्टिमेट्स हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? इट इज यूपी। देन व्हिच कमिटी रिकमेंडेशन, आई टोल्ड यू है ना कि हमेशा दे टास्क टॉक अबाउट पीआरआईज, कमिटीज पूछ लेंगे या 5 इयर्स का पूछ लेंगे या पैसा एक्ट पूछ लेंगे। सो बलवंत राय कमिटीज का जो है वो आंसर था जिन्होंने स्टार्टिंग में बात की थी पीआरआईज की, राइट? देन क्लाइमेट चेंज, right? Climate change mission supports national policy for research and development, capacity building, data sharing, and spreading awareness about climate change, right? So that was action plan on climate change, one of the 8 missions, है ना? सॉरी, इसके अंदर ही जो है आपके जो 8 मिशंस हैं। देन एक प्रिजर्वेशन का यहाँ ने पूछ लिया, पिछली बार भी पूछा था यहाँ पे प्रिजर्वेशन का, यहाँ पे भी उन्होंने पूछ लिया कि आपको सीड्स को अगर प्रिजर्व करना है देन व्हाट डू, यू यूज लिक्विड नाइट्रोजन, राइट? दैट इज आल्सो नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन, यू मस्ट बी अवेयर, राइट? देन राबी सीजन, राबी का मार्केटिंग सीजन पूछ लिया, सबको पता है कि जो अप्रैल में राबी की क्रॉप्स की क्या होती है, हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, तो इट इज मार्च टू अप्रैल, राइट? सो कैन आई से दैट दिस इज फ्रॉम क्रॉप्स? यस, दिस इज फ्रॉम क्रॉप्स। अगेन वहां पे एनपीके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पूछा था, देन यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया फंक्शन ऑफ कैल्शियम, इट मेंटेन सेल वॉल, ठीक है? तो ये इसको आप ऐसे करके, कैल्शियम हमें एक न्यूट्रिएंट पढ़ना होता है और उसके 2-3 फंक्शंस पढ़ने होते हैं। सो सी फॉर कैल्शियम, सी फॉर सेल वॉल। द एक्ट ऑफ सेपरेट, बेसिकली ये ट्रिक हुआ करती थी जब मैं पढ़ती थी, द एक्ट ऑफ सेपरेटिंग अ calf फ्रॉम इट्स मदर। सो सी, हमने क्या किया था? Wallowing, right? Now some kind of activity, some kind of process they do ask. For example, they said the act of separating a calf from its mother is known as what? It is known as weaning, right? Then why are eggs turned upside down during the incubation process? To prevent the embryo from sticking to the shell membrane. अब ये poultry का question है. Then again a keen question of what? Shram Yogi Madan Yojana, where they asked about basic thing कि what is the age if you want to enroll? That shall be between 18 to 40 years. Then MSP, हर बार they'll ask you MSP, क्या तो किसी का MSP पूछ लेंगे, कौन recommend करता है ये पूछ लेंगे, who finalize it, cabinet committee on economic affairs पूछ लेंगे, right? What are the portions, MSP में कितनी crops है, what does it include, FRP, sugar cane. अब यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया FRP किसके लिए होता है? शुगर केन के लिए होता है, राइट? देन एमजी नरेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्कीम विच इज नाउ वीबीजी रामजी, उस वक्त ये एमजी नरेगा चला हुआ था, तो ऑब्वियसली द वर्क वाज 100 डेज। अगेन पीएम फसल बीमा योजना में इन्होंने ये पूछ लिया कि विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली कमिंग टू सपोर्ट टू इंप्लीमेंट दिस, इट वाज यूएनडीपी। Now, again they have asked about subsurface irrigation, involves the application of water below the soil surface. अब देखो इतना easy question है, surface below the soil surface, नहीं भी पता तो भी लिख दोगे, subsurface irrigation. What is the process that called involves removing field heat from flowers, right? So basically if you want to remove heat from the flowers, what is known as, it is a part of horticulture, है ना? It's a part of horticulture which is known as pre-cooling. This is irrigation कि भाई evapotranspiration, sorry, the yield of marketable crop produce per unit of water. So basically यही बोलता है कि what is the water use efficiency, that means the water which is left after evapotranspiration is known as water use efficiency. So the my point is it is of irrigation, right? आपसे सिर्फ terms पूछी जा रही है in phase 1, ये phase 1 है, ये सिर्फ आपसे terms पूछी जा रही है, ये various portals है, right? जैसे for example, what is the official portal launched by the Government of India to provide solutions and timely information to farmers addressing their agriculture needs. So basically it is सुविधा portal. ठीक है, अब आप देखो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, राइट? अगेन नाबार्ड इज इंप्लीमेंटिंग दिस, आपको पता होगा देयर इज अ फंड अंडर UNFCCC, इट इज अ ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड फॉर इंडिया नाबार्ड इज बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ दिस फंड, राइट? तो ये पूछ लिया इन्होंने। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया दैट ये ऐसा ऐसा एक वर्क है जहाँ पे एक्सटेंशन वर्कर्स है, आप जाओगे फार्मर्स के पास दे एंड देन फार्मर्स को आप यू विल डेमोन्स्ट्रेट इट, राइट? सीड सोइंग, एंड ये डेमोन्स्ट्रेट करोगे, व्हाट इज इट? इट इज नॉन एज मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। सीडलेस ग्रेप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, राइट? इट इज अ पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर कि अगर आपको ग्रेप्स का यू व्हाट यू हैव टू डू देन व्हाट इज नॉन एज एडिशन ऑफ जीन्स।
Then this is a part of the scheme, Pradhan Mantri Awas Yojana, right? What is it? Basically, you are driving income for the what? कुछ तो पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है? अच्छा, who is eligible to receive this? So किसको eligibility criteria पूछा गया है? So obviously अगर आपके पास पैसा है, वेलर है, KCC कार्ड है, it means casual labor, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछ लिया. देन ये वीट का पूछा हुआ, इट वाज लिटिल टफ, क्या करा है तो करा है. वैरायटी, क्योंकि बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, विच इज ड्वार्फ एंड रेजिस्टेंट टू क्रॉप्स, बट इट इज अ पार्ट ऑफ क्रॉप्स. सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की 5-6 बातें हम पढ़ के जाते हैं. फॉर एग्जांपल 16.6% इज द पॉपुलेशन ऑफ एससीज, 8.6 ऑफ एसटीज. इसी तरीके से इन्होंने ये पूछ लिया कि what do you mean by rural area having the population of less than 5,000. Forest conservation, told you, let's say forest policy 88 पूछा. Then again यहाँ पे forest conservation act पूछ लिया, that is 1980, basically talking about that division of forest land अगर होगा, then it is being managed, not managed, it is being monitored by which act? It is known as this. So basically यही सारे acts हैं जो repeat होते रहते हैं, आपको एक एक लाइन में learn करने होते हैं, right? Then which one of the following is not a board for agriculture produce? बताया था आपको कि बोर्ड्स पूछे जाते हैं, तो ये सारे बोर्ड्स हैं, these are statutory boards because they are being passed by some sort of acts, but this is not a any kind of board. This is from the tillage and farm engineering. कौन सा implement जो है, you can basically derive power from the tractor's engine. Which one of the following is a floating aquatic weed? So weeds होते हैं, floating aquatic weeds होते हैं, this is part of it. This was tough, है ना? पाथी नेम आपको पता होना चाहिए, it is a grass. The temperatures at which the air becomes saturated with moisture at a given pressure is known as what? Right? So basically this is a part of meteorology. Meteorology आपको पढ़ाया जाता है, humidity, relative humidity, dew point, ठीक है? ये थोड़ा geography भी आ जाती है इसमें, ठीक है? चलिए. So this is basically a part of manures and fertilizers, nitrogen, nitrofixation, denitrification, ammonification, all of that. कौन से bacteria are involved in the nitrification? So it is known as denitrification because यहाँ पे nitrogen की रिवर्स प्रोसेस पूछिए. सो आपने नोटिस किया होगा, अगेन देयर वाज सीड्स, इरोजन, हॉर्टिकल्चर, देन क्रॉप्स, देन वन वाज एग्री एक्सटेंशन. एक दो क्वेश्चन आपके उससे पूछे जा रहे हैं, एस्टिमेट से, फिर पूछे जा रहे हैं आपके हॉर्टिकल इससे, फसल बीमा योजना से, केसीसी से. मतलब पैटर्न इज सो सिमिलर, द पैटर्न इज सो सिमिलर, एनिमल हस्बेंड्री एंड देन पोल्ट्री. ठीक है, चलिए. अब अभी विल बी डूइंग फॉर दिस 2023 एआरडी क्वेश्चंस, है ना, फॉर बोथ मॉर्निंग शिफ्ट एंड an evening shift. Give me 2 minutes. Chaliye. So what is the scientific name? Again, the very first question they ask about the scientific name of each and everything. Ginger का पूछ रहे हैं कभी, the cardamom and then पीछे उन्होंने पूछा था, किसका पूछा था, किसी का तो पूछा था, हाँ, बार्ले का पूछा था. यहाँ पे इन्होंने कार्नेशन प्लांट का पूछ लिया, which is Dianthus caryophyllus. ठीक है, if you could imagine, means you can deduce it, then you could deduce it. राइट. देन अगेन इरोजन देख लो, पहले अभी पीछे उन्होंने पूछा था, देखो रिपीट हो रहा है कि टेल मी द पार्ट्स ऑफ दिस, सॉरी, स्टेजेस ऑफ इरोजन. नाउ दे हैव आस्क्ड अबाउट इट कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एप्लीकेशन आपको समझ में नहीं आता है. शीट इरोजन के बाद क्या होता है? इट इज नॉन एज ड्रिल्स इरोजन. ठीक, कैन यू सी द कंसीडर, कैन यू कंसीडर द क्वेश्चंस व्हिच आर बेसिकली सेम, है ना? देन साउथ वेस्ट मानसून कब आते हैं इंडिया में? अगेन इट इज द क्लाइमेट, इट इज अबाउट द क्लाइमेट. Which of the following bodies is responsible? Again I told you, कौन रिकमेंड करता है? सीएससीपी, एमएसपी का इक्वेशन आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, राइट? जैसे फूड ग्रेन्स आर जनरली कंसिडर्ड. सो एक क्वेश्चन आपको स्टोरेज का है ना, एक क्वेश्चन आपको स्टोरेज का है, जैसे वहां पे कौन सा था? लिक्विड नाइट्रोजन, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ व्हाट? सीड्स. अगेन दे हैव आस्क्ड अबाउट दैट, इफ यू वांट टू स्टोर फूड ग्रेन्स देन यू हैव टू रिड्यूस इट्स मॉइस्चर लेवल टू व्हाट परसेंट? इट इज 15%. हाउएवर इन द एग्जाम इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज इट वाज टू फैक्चुअल. मैं तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान नहीं देती, जो नहीं आता मुझे नहीं आता. देन which type of soil generally has the least particle density? So you will be reading about the sandy soil, clay soil and silty soil, which अगर आपने ये पढ़ा है तो ये बहुत ज़्यादा easy question है, right? जैसे पीछे अभी पूछा हुआ था डिनाइट्रिफिकेशन का, इट इज अ पार्ट ऑफ नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोफिक्सेशन. व्हिच बैक्टीरिया इज रिस्पांसिबल फॉर दिस फिक्सिंग? दैट इज एजोस्पेरिलम एंड इट इज अ पार्ट ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, राइट? तो एक क्वेश्चन आपका न्यूट्रिएंट से आ रहा है, एक क्वेश्चन आपका मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर से आ रहा है. फिशरीज का भूले बट के आ जाता है, कभी आता है कभी नहीं आता, मैक्स टू मैक्स 1 ही क्वेश्चन आता है, राइट? सो यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन चाहिए ना हेल्दी एक्वेटिक लाइफ. Then an irrigation project, this is important. They ask about medium प्रोजेक्ट्स, राइट, लार्ज प्रोजेक्ट्स, सेमी मीडियम प्रोजेक्ट्स एंड माइनर. तो ये इजी होता है लर्न करना, कितना हेक्टेयर में. इट्स अ पार्ट ऑफ इरिगेशन एंड वाटरशेड्स मैनेजमेंट. कमांड एरिया आपको दे देंगे, जैसे 2 to 10 आपका मीडियम है, मोर देन 10 इट इज नॉन एज लार्ज, लेस देन 2 इट इज नॉन एज
small or minor. Then अब देखो which are the term that is used for castrated female pig. So they ask about terms in the animal husbandry so much. It is known as so. एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का फिर से पूछ लिया, सेम चीज है, यू आर गोइंग वेरियस मेथड्स आर बीइंग अडॉप्टेड, व्हिच मेथड इज नॉन एज, इट इज नॉन एज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। एक ब्रीड का, हर बार ब्रीड का क्वेश्चन पूछेंगे, लास्ट टाइम इन्होंने ब्रीड का भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी सबसे ज्यादा क्या बोलती है, मिल्क प्रोडक्शन। हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी, दे देंगे कि ओके इट इज फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड व्हाट आर ड्रॉट पर्पसेस के लिए कौन सा है, इट इज ड्योनी। व्हाई? बिकॉज ऑल ये क्या है, गिर इज बेसिकली फॉर द मिल्क, राइट, थर्ड प्रकार इज फॉर द बोथ, बट दैट टॉकिंग अबाउट ड्रॉट पर्पसेस, ठीक है, मिल्क एंड ड्रॉट है दोनों, कांकरेज एंड थर्ड प्रकार। नाउ पोल्ट्री बर्ड्स आर प्राइमरी रेज फॉर मीट प्रोडक्शन, राइट, एंड बेसिकली अगर मैंने आपको बताया था कि 21st वीक में अगर होता है तो लेयरिंग होता है, नाउ विच इज 9 to 20th वीक, इट इज नॉन एज बॉयलर। सो बेसिकली यू हैव टू लर्न द वीक्स। उल्टा भी पूछा जा सकते हैं कि ब्रॉयलर कौन से वीक्स में आपको कंसिडर करते हैं। Again, they are asking about it how many weeks like egg production began laying eggs at a specific age, up to what age hens typically continue। आप नोटिस करो hen की जो लेयरिंग प्रोडक्शन है उसकी वीक्स, उसकी स्टार्टिंग, उसकी एंडिंग, सबसे ज्यादा कब एग्स दे रहे हैं, किस एज तक एग्स देंगे, बस यही पूछा जा रहा है फिर से। व्हाट कलर इज टैग इज टिपिकली यूज्ड फॉर सर्टिफाइड सीड्स। आई टोल्ड यू दे आस्क अबाउट द सीड्स का सर्टिफिकेशन या फिर न्यूक्लियर ब्रीड एंड ऑल ऑफ दैट, ब्रीडर सीड्स। तो अब यहाँ पे इन्होंने सर्टिफाइड सीड्स का कलर पूछ लिया, राइट। व्हाट इज द बोटेनिकल फैमिली ऑफ द ख्यार ट्री। अब यहाँ पे इन्होंने इसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया बेसिकली, विच इज कॉम्ब्रेटेसे। देन द प्रोसेस बाय विच काफ इज सेपरेटेड फ्रॉम मदर। अब देखो ये रिपीट हो रहा है, पीछे भी आया था, सेपरेटेड फ्रॉम द मदर, दैट इज नॉन एज वीनिंग। Then this is a part of horticulture। बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे pruning, grafting, layering। So they are asking about कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें basically you are trying to remove the undesirable plants, which is known as pruning। जिसको खेती जिन्होंने बहुत क्लोजली तरीके से देखी है या गार्डन में भी देखे होंगे, तो डिटैचिंग द अनवांटेड दिस इज नॉन एज पार्ट ऑफ प्रूनिंग। देन ये थोड़ा रॉक्स एंड मिनरल्स का क्वेश्चन है जिसको हम सोयल इसमें हम पूछते हैं, सोयल इरोजन में पूछते हैं, राइट। दैट मींस द डिटैचमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, व्हाट इज नॉन एज सोयल वेदरिंग, है ना, पूरा पढ़ते हैं इसमें, सोयल वेदरिंग होता है, देन सोयल ट्रांस वो होती है, देन सोयल का सेडिमेंटेशन होता है, दैट इज हाउ सोयल इज फॉर्म्ड। चलिए, दिस इज अबाउट द क्लाइमेट चेंज, है ना, कि सबसे ज्यादा आपका CO2 एमिशंस किससे होता है, दैट इज व्हाट बेसिकली दैट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज, लाइवस्टॉक, वोल्केनिक से कौन सा एमिशन निकलता है, दैट इज CO2। देन दिस इज अबाउट इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ऑफ एन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राइट, कि कितना जो है अमाउंट मिलता है, दैट इज 3 लाख रुपीज, ठीक है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, KCC, ये स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PM फसल बीमा योजना, MG नरेगा कि एक्स्ट्रा कितने डेज का आपको काम मिलता है इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ व्हाट कैलेमिटीज, दैट वाज 50 डेज, ये अब नहीं है, पहले था। देन JGM जल जीवन मिशन में हाउ मेनी पर्सन्स पर कैपिटा को कितने डेज ऑफ लीटर्स पानी मिलता है, दैट वाज 55, ठीक है। मतलब अगेन स्कीम का क्वेश्चन है, अगेन फिर यहाँ पे स्कीम का क्वेश्चन पूछ लिया, आत्मनिर्भरता ऑफ व्हाट फूड ग्रेन्स, विच इज गरीब कल्याण योजना उस वक्त चल रही थी। देन ड्राईलैंड फार्मिंग बेसिकली होता है, एक ड्राई फार्मिंग होता है, एक ड्राईलैंड फार्मिंग होता है। देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ कि उसमें रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर, नॉट रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर, बेसिकली इट इज बेसिकली टेलिंग कि इस फार्म में जो वाटर है वो बेसिकली रेनफॉल वो कितनी होती है, राइट। What is the SI unit of electrical conductivity? Again, this is a question of farm and engineering. This is also a question of farm and engineering. Ki cost incurred for the operation of tractors, including fuel, labor, and other variable expenses, is related to what? It is operating cost. Again, this is a question of farm engineering. वैसे farm engineering से you can expect one question, but इस बार इन्होंने पूछ लिया 3 questions. However, जरूरी नहीं है कि हर बार 3 questions आए. Maximum 1 question पूछा जाता है normally. Right? PSL norms is also important where they tells about the target and sub target, जैसे to the agriculture, then target to the small and marginal farmers, जो कि इन्होंने small and marginal का पूछा था, ठीक है। The sum of lignin and polysaccharides that are not digested by the digestive is known as fiber. So basically ये भी एक तरीके से process of animals digestive system की बात हो रही है, right? Then approximately protein and oil contact in groundnut. This is a part of seeds. What is the protein and oil in the groundnut? Which of the following statement is true with respect to drip irrigation? So again they have asked about the drip irrigation. 25 में भी पूछा था, delivers directly to the root zone of the plants. Then talking about Swachh Bharat mission. Swachh Bharat mission कब से कब तक होगा? Again is a part of scheme question. Then this is a type of cropping patterns. बताया था आपको 2 or more crops एक साथ होते हैं. Then what do we say? It is known as multiple cropping. इसको क्या हो गया? चलिए, देन बजट से क्वेश्चन आया कि भाई व्हाट इज द बेसिकली आउटले ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, क्रेडिट टारगेट, नॉट द आउटले, द क्रेडिट टारगेट। दिस इज बेसिकली सोइल इरोजन कंजर्वेशन मेथड, सोइल इरोजन के कंजर्वेशन मेथड्स पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर आप बेंच टेरेसिंग करोगे तो स्लॉप कितना होना चाहिए, इट इज 16 to 33%।
Again, this is of what? PM Fasal Bima Yojana. So this was a morning shift of what? 2023. Now we'll be repeating same चीज है. अगर आप नोटिस करोगे सेम ही आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछ लिया एक एनिमल हस्बेंड्री का, वहां पे उन्होंने पूछा तो यहाँ पे पूछ लिया कि व्हाट इज द जेस्टेशन पीरियड ऑफ स्वाइन. इट इज नॉन एज 114 days. Gestation period is basically kind of pregnancy period, right? Then accreditation of certification body, ये organization का क्वेश्चन पूछ लिया है ना, वहां पे भी पूछा हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में. there is a program for organic production. What age at which debeaking is commonly preferred in poultry? This is a poultry question. Okay. What is the budgetary allocation for the national agriculture under agri infrastructure transfer? तो वहां पे पूछ लिया था कि एनिमल उसमें आपका लोन क्रेडिट कितना देना है. यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया इसमें एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में बेसिकली बजटरी एलोकेशन उस साल कितना था, यानी कि बजट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दिस. देन अफॉरेस्टेशन टेक्निक, प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री वेयर यू वांट इंक्रीजिंग द एरिया अंडर ट्री ग्रोथ, ये तो कॉमन सेंस है. एफॉरेस्टेशन, राइट, ये क्लाइमेट एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन है. दैट कौन सी लेयर्स में आपको ये देखने को मिलेगा व्हेन विच द स्पेस एंड सैटेलाइट्स ऑर्बिट. ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी आज इसमें पूछ रहे हैं. एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, बट इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्लाइमेट. इट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्लाइमेट. ठीक है. देन लखपति दीदीज, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? स्कीम्स, right? It is a part of Lakpati Didis was announced in the what? Union budget, right? It is telling about which ministry is related to it. Obviously, it is Ministry of Rural Development, right? ये मार्क नहीं है बट अच्छा इसमें दिया हुआ है. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो है ही. मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री भी होगा, ये मुझे पता नहीं था बट ठीक है. आंसर इज द ऑल ऑफ द अबव बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक लखपति दीदीज इन द ट्राइबल एरियाज ऑल्सो. ठीक है, चलिए. Then, what is the scientific name of KIP? Again, right? With soil conservation, again, they're talking about soil conservation thing, right? Technique which is being used to reduce the, so if there's a sloping, then rainwater हो रहा है, क्या करोगे आप? ठीक है, counter flowing. Amrit Dharohar scheme, again, it is a question of schemes where you are conserving what? Sites. Low water retention crops, retention capacity, again I told you soil से क्वेश्चन आता है. सैंडी सॉइल, सलाइन सॉइल्स. सो अगेन यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया किसकी लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है. आपको भी पता होगा रेती सैंडी सॉइल्स की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा लीस्ट होती है. हाईएस्ट किसकी होती है? क्ले की होती है. देन फॉरेस्ट्री से फिर से क्वेश्चन पूछ लिया कि एस्थेटिक वैल्यू के लिए विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री डू यू डू? इट इज नॉन एज आर्बोरिकल्चर. ठीक है. एक यहाँ पे फिशरीज का क्वेश्चन देखो, एक आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, राइट? फिश फार्मिंग इन इंडिया सबसे ज्यादा किसकी होती है? काटला. एमएसपी का फिर से क्वेश्चन आ गया बट यहाँ पे इन्होंने इस बार एमएसपी का पॉइंट पूछ लिया. स्टैटिक भी पूछ सकते हैं, करंट भी पूछ सकते हैं कि बेसिकली व्हाट वाज द एमएसपी फॉर व्हाट. किसका पूछा हुआ है? एवीट का पूछा हुआ है, right? This is for the animal husbandry, that what kind of female hormone is being released, right? For the in the embryo, that is known as progesterone. Millets. Millets का question, millets is means again a crop of question which is not a millet, right? Maize is not a millet. Why? Because these are type of what? Major and minor millets. देन अगेन एफआरपी, ये पहले सेशन में भी आया था. एफआरपी किसके लिए होता है? शुगर केन के लिए होता है. उल्टा पूछ लिया होगा, right? This is again from the फसल बीमा योजना where you have to tell the percentage of what? Insurance premium that is being paid by the farmers for the rabi, kharif and horticulture crops. चलिए अगेन एक उन्होंने प्रिजर्वेशन का क्वेश्चन हर पूछ रहे हैं ना. लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ पे भी पूछ लिया इन्होंने. रिमूविंग हीट इमीडिएटली एंड इफ दिस इज नॉट डन द प्रोड्यूस विल डेटेराइट. सो व्हाट विल यू डू? यू विल, इट इज नॉन एज प्री कूलिंग. प्लांट्स एंड डिजीज का क्वेश्चन हो गया. फिर दिस इज अबाउट द सोइल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. ये सोइल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया जाता है बिल्कुल एग्जैक्टली आपको कि व्हाट इज नॉन एज फील्ड कैपेसिटी, व्हाट इज नॉन एज सैचुरेशन पॉइंट और हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है. दिस आर यू विल बी स्टडीइंग इन व्हाट? फिजिकल प्रॉपर्टीज, right? This is a caution from breed. It is characterized by docile temperament, ठीक है, and it is ideal for dairy farming where you have to think that कौन सी ये breed है. Then again crop question, puddling technique, obviously very common. Puddling is in what? Rice. Minimum percentage required for certified seeds, right? I told you यही पूछते हैं घूम फिर के. कलर क्या है, परसेंटेज क्या है, न्यूक्लियर के बाद, न्यूक्लियर सीड्स के बाद कौन सा आता है? So it is basically 98%. Phosphorus in which of the minerals? This was little tough. वैसे it was in our notes but little tough to remember. सोयल में ही आई, सोयल का ही पार्ट है. देन द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग मेडिसिन विद वाटर इज नॉन एज ड्रेंचिंग. इट इज अ पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज एनिमल्स को दिया जा रहा है. देन प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग ट्रांसप्लांट सीडलिंग्स ग्रेजुअली टू आउटडोर कंडीशंस. इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर और दिस हार्डनिंग. Then they have asked about which ministry is responsible for what? Food safety. Food safety ये आपका किसमें current affair में भी बोल सकते हैं. It is a static portion also. Food safety standards of Authority of India that comes under Ministry of Health and Family Welfare. Correct?
चलिए, तो आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, फाउंडेशन सीड्स कौन से सीड से आ रहा है, ठीक है। फिर सीड्स का डोमेंसी को ब्रेक करने को क्या 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 मेथड्स हो सकते हैं, दीज ऑल आर मेथड्स ऑफ इट, राइट। अगेन दे हैव आस्क्ड अबाउट ग्रेविटेशनल वाटर, आई जस्ट टोल्ड यू। सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे फिर से क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। देन दिस इज द मैंगो डिजीज, ठीक है, डिजीज अगेन। देन दे टॉकिंग अबाउट अपेडा, राइट, अपेडा यू नो दैट इज टॉकिंग अबाउट सारी चीजों के बारे में फोकस करता है व्हेन इट कम्स टू द एक्सपोर्ट्स, व्हेन इट कम्स टू द एक्सपोर्ट्स। चलिए, the maximum project cost, right? It is of the scheme. Then again they have asked about soil erosion, ठीक है। in the formoni shift they asked उल्टा कि इतना बेंच टेरेसिंग करनी है तो स्लॉप परसेंटेज कितना होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने ये दे दिया कि अगर मुझे ये वाली चीज करनी है, वर्टिकल है, तो क्या करना चाहिए, इट इज बेंच टेरेसिंग। सो बेसिकली वही घूम फिर के सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। 21 डेज पे जो है यू बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट होता है। देन सरफेस इरिगेशन के बारे में पूछ लिया, राइट। देन हाउ कैन इंक्यूबेटेड चिक्स बी केप्ट विदाउट फूड एंड वाटर फॉर हाउ मेनी डेज, राइट। And then for x3 से भी questions आ रहे हैं। So see, we have done analysis for 25 है ना, कि कितने कौन कौन से चीज़ों से आ रहे हैं। Then we have done of 2022 sorry 4 and 2023 के दोनों phases के we have done। अगर आप यहाँ पे notice करोगे, these are the major chapters जहाँ से सबसे ज़्यादा question पूछे जा रहे हैं। In the agronomy it is 8 6 7 6, ये देख लो 6 questions of agronomy, which means crops, cropping patterns, cropping systems. Then it is basics of agriculture. Then soil and water conservation, which means soil irrigation, soil erosion and soil conservation techniques, राइट। वाटर रिसोर्स, फार्म एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैंने बताया था आपको, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चंस इन 2024 पूछे हुए हैं, एक बार इन्होंने ज्यादा पूछ लिए थे, दैट इज 3। प्लांटेशंस एंड हॉर्टिकल्चर, वेरी मेनी क्वेश्चंस। देन एनिमल दिस हस्बेंड्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोल्ट्री से भी, आई थिंक इट इंक्लूड्स पोल्ट्री ऑल्सो, जहां तक मुझे लग रहा है। फॉरेस्ट्री से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है, एक्सटेंशन से 1 क्वेश्चन आता है, ठीक है। इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज नॉर्मल, आप ESM में भी पढ़ते हो, तो 2 क्वेश्चन मैक्सिमम यू कैन एक्सपेक्ट। सो बेसिकली अगर आप देखोगे, राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे 6 6 12 13 14 15 15 20 24 25 26 था। सो बेसिकली हेयर अप्रोक्सीमेटली 29 to 30 क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से आपके आ रहे हैं इन दिस एग्रीकल्चर स्टैटिक, ठीक है, राइट। और फिर बेसिकली एग्रीस्टैटिक और जो भी स्कीम्स हैं, राइट, इसमें से आपके इतने सारे इन्हीं चैप्टर में से अगर 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, देन द strategy shall be that you have to cover these chapters पहले, specifically you have to cover these chapters पहले, and then you are very good to go to basically do the fringe chapters। आप इतना भी कर लो, then it is काफी। So that's it guys, I hope you like the session where we are here basically not only to discuss the theme, so that you get an idea what kind of PYQs are being asked. So thank you so much for watching this session, I hope you liked it, thank you so much, keep studying।